Hello, welcome to my channel Learn with Himangi. So this is Himangi and again come back with a new video, and in this video I'm going to share with you the tips or methods to make an effective notes or short notes to crack any competitive or any exam. Okay? So in this video I'm going to share you the tips, tricks, methods are science backed strategies, scientifically proven methods to make an effective notes, and stick with me till the end, because at the end I'm going to reveal or I'm going to show you the how I have made my short notes which help me to qualify my to clear my competitive exam, which is a NET exam, and I'm going to show you at the end of this video. So please stay tuned till the end. If you are new to this video or channel, so please do subscribe to my channel and watch till the end. Let's get into the video. So see, some students using different types of method or techniques to make an effective notes. For example, some students just copy it from the textbook and writing it down on their notes, or some student using different methods which might be work for them or not. But why this happened? Because they are just misinformed that how to make an effective note. So because no one has ever taught them how to make that notes effective notes or to, but before that let me tell you the harsh truth, which is your mind doesn't remember what your hand copies. आपके हाथ में क्या है वो आपके माइंड में रिमेंबर नहीं होता है, बट इट डज रिमेंबर व्हाट योर माइंड प्रोसेस. आपके माइंड में कितना गया है, कितना प्रोसेस किया है उस स्टडी से, आपने क्या माइंड में कितना गया है, दैट रिमेंबर्स अ लॉट. So I'm going to fix it with the 5 techniques or 5 methods. I'm going to share the 5 methods which help me a lot, or I'm going to guarantee you that you can also use this any technique out of these 5. So the very first point is you have to find it out the why, your purpose, why you want to make the notes, what is the purpose to make the note. फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स का पर्पज़ हो सकता है उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए नोट्स बनाने हैं. कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है इट कुड बी टू क्वालिफाई एनी कॉलेज एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और just memory lectures के लिए. It could be any reason. So you have to find it out the reason. You have to find it out your purpose, why you want to make this note. उसके बाद फिर डिज़ाइन आएगा. फॉर एग्जाम्पल आपने डिज़ाइन अच्छे से बनाया है सब नोट में, एवरीथिंग इज़ सो नाइस क्लियर एंड एवरीथिंग, बट आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है व्हाट यू हैव रिटन ऑन योर नोट्स. आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है. एवरीथिंग प्रेजेंटेशन इज सो नाइस एंड डिज़ाइन इज ऑल्सो नाइस, बट यू डोंट नो व्हाट यू हैव रिटन. You are not understandable by you. It is not clearly visible to you, or it is not clearly understandable by you. So that is not the you have failed. So very first technique is clarity होना ज़रूरी है. You must have clarity why you want to make the note and your purpose क्या है आपका, कोई एग्ज़ाम है कि क्या है. You need to find it out that first, and we'll talk about second topic about the design. The second technique is active recall, not passive recall. For example, don't just write it down. Just paraphrase and predict. 3P. Use this 3P formula. So what is this 3P formula? For example, आप स्टडी कुछ भी लिख रहे हो नोट्स में, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन. अभी शॉर्ट नोट्स में क्या आएगा, शॉर्ट नोट्स में आप एज इट इज़ डेफिनेशन नहीं लिख सकते. दिस शुड नॉट बी in your short notes. Definition as it is. Use only keywords. For example, definition है 3 sentences का, so you have to write it down only 3 to 4 keywords. That is your short notes. उसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं और इफेक्टिव नोट्स बोलते हैं. जस्ट एज इट इज़ आपने कॉपी किया है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, दैट इज़ नॉट कॉल्ड शॉर्ट नोट्स और इफेक्टिव नोट्स. अभी इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाया जाएगा, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन कि अभी शॉर्ट नोट्स और इफेक्टिव नोट कैसे बनाते हैं. यस. सो वेरी फर्स्ट is you can use mind maps or flashcard. Now what is mind map or flashcards? Do you know what is flashcards? अभी flashcards for example कोई भी टॉपिक आपको आपके माइंड में जस्ट रिमाइंड करना है, तो what you can do is use any type, any color, whichever you like, board paper or any paper or whichever color you like, just take it out, pick it up and write down the topic which you want to recall. और जो भी टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है आपको रिकॉल करना है उस टॉपिक के बारे में, नॉट एज इट इज़, जस्ट राइट इट डाउन द कीवर्ड्स और फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हो सकता है या फिर टैक्स का कोई रूल हो सकता है या फिर कोई सेक्शंस आपको याद करने हैं, हिस्ट्री याद करनी है या फिर एनी स्टैटिस्टिकल डेटा आपको याद करना है. सो यूज़ दैट डेटा
वो जो डेटा है आपको कहाँ पे मेंशन करना है, द कार्डबोर्ड पेपर, जो फ्लैश कार्ड्स आपने बनाए हैं छोटे छोटे वहाँ पे, और यू कैन स्टिक दैट फ्लैश कार्ड वेरेवर यू वांट in your home, wherever you want, on a wall or on a table, you can stick it out wherever you want. ठीक है, this is the first फ्लैश कार्ड मेथड. और सेकेंड इज माइंड मैप मेथड्स. अब ये माइंड मैप मेथड क्या है? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एज इट इज़, फॉर एग्जाम्पल कोई लेक्चर अटेंड किया है तो उस लेक्चर से आपने आपके नोटबुक में कुछ सेंटेंसेस बना के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया. अभी उसको शॉर्ट नोट्स बोलेंगे क्या? ये जो शॉर्ट नोट्स अपने बनाए फॉर एग्जांपल 10 पेजेस का या फिर 20 पेजेस का या फिर जो भी आपने बनाया है, उसको आपको क्या करना है? कन्वर्ट दैट थिंग पैराग्राफ इनटू अ डायग्राम. हैव यू गॉट इट? फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिख दिया सेंटेंसेस, 10 सेंटेंसेस, और मैंने बोला इसको रिकॉल करके आना है कल. द ऑप्शन आई एम गोइंग टू गिव यू. फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने स्टडी पढ़ा है आपको, यही 10 सेंटेंस में अभी मैं डायग्राम में कन्वर्ट करके यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिख लूँ. सो आउट ऑफ दिस 2 ऑप्शंस व्हाट विच हेल्प्स यू टू रिकॉल द मोर? क्या आपको ज़्यादा रिकॉल करने के लिए ज़्यादा हेल्प करेगा? दैट पैराग्राफ 10 सेंटेंस वाला, और आउट ऑफ द 10 सेंटेंस आई एम यूजिंग द डायग्राम. कौन सा डायग्राम? और अकॉर्डिंग टू द साइंस, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, इट हैज़ बीन फाउंड आउट दैट कि आपने जो भी स्टडी किया है, फॉर एग्जांपल आप जो भी डायग्राम्स या फिर पिक्चराइजेशन जो है, पिक्चर या फिर डायग्राम, वो आपके माइंड में ज़्यादा रिकॉल होता है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट. सो यूज़ माइंड मैप. अभी ये माइंड मैप क्या होते हैं वो भी मैं आपको शो करने वाली हूँ. शो वॉज इन द एंड. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 24 आवर रूल. सो व्हाट इज़ 24 आवर रूल? इट हैज़ बीन सेड दैट कि आपने जो भी रिवाइज या फिर नोट्स बना है उसको आपने बनाया है वेरी नाइसली, प्रेजेंटेशन, वी हैव यूज कलर और डायग्राम, माइंड मैप, सब ने आपने अच्छे से सब कुछ बनाया है. बट व्हाट इफ को रिमेंबर करने के लिए हेल्प ही नहीं कर रहा है, तो व्हाट्स द यूज़ ऑफ दिस नोट्स? क्या है यूज़ आपका नोट्स का? सो आपको पहले चीज़ क्या करना है, जो भी आपने नोट्स जब भी बनाया हो उसको रिविज़िट करना है विदिन 24 आवर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने इवनिंग में नोट्स बनाया है तो कल के इवनिंग तक, नेक्स्ट के पहले आपको वो रिविज़िट करना है. गॉट इट? इन द मॉर्निंग whenever you wake up you have to revise whatever you have written on your notes. You have to revise in the, जब आप उठ रहे हो तब आपको रिवाइज करना है वेरी फर्स्ट थिंग. और बिफोर गेटिंग इन टू द बेड यू हैव टू अगेन रिवाइज देम 2 times. ठीक है? Within 24 hours, you have to revise 2 times whatever you have written on your effective notes, which is first at the very first early morning whenever you wake up, and before getting into the bed 2 times you have to revise it. Then it will give you the benefit. But अगर आपने रिवाइज करने के लिए ही नोट्स नहीं बनाए, what is the use of this notes? आपको ये रिमेंबर करने के लिए हेल्प ही नहीं करेगा आपने अगर रिवाइज नहीं किया तो. So the very important thing is to revisit your notes within 24 hours. Now the next point is use cues, not needs. अभी what ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल जो मार्जिन होता है शॉर्ट नोट्स का, उस मार्जिन में आप कुछ क्वेश्चंस लिख सकते हो रिलेटेड टू दैट टॉपिक, और जो भी आपको जो टॉपिक आपने लिखा है वहाँ पे उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप इन कीवर्ड्स और इन ब्रैकेट उस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, ताकि आप जब भी रिवाइज करोगे उस एक कीवर्ड और एग्जाम्पल से आपको याद आएगा कि ये टॉपिक का मीनिंग क्या है. Yeah, we got it. Or you can use diagram, as I've already said, the diagram, mind maps, and you can use color, bold color, or even you can use blank white paper. Don't use that line wala paper. Use blank white paper to make the effective notes. If you find this video helpful, so please do like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press that bell icon so that you won't miss out any video of my channel. And याद रखो, नोट्स ऐसे बनाओ जो याद रहे. That is the main core of this video. नोट्स ऐसे ही बनाओ जो आपको याद रहे, ना कि प्रेजेंटेशन के लिए और किसी को दिखाने के लिए. आपको समझना चाहिए, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो आपको याद रहे और आपको समझ में आए ऐसे ही नोट आप बनाओ. दैट इज़ द मेन कोर ऑफ दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे.